Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the United Nations. Points to study: formation of the UNO, objectives of the UNO, organs of the UNO, agencies of the UNO, achievements of the UNO, India and the UNO. Ready, steady, start. Before reading the lesson, your teacher will teach you about the importance of international organizations. ये आप खुद से करेंगे. Formation of the UNO. The United Nations Organization was the outcome of the result of the devastating effects of the Second World War. The first half of the 20th century witnessed two dreadful and destructive wars. These were known as the World War I and World War II. The World War I began in the year 1914 and came to an end in the 1919 with the Treaty of Versailles. देखिए, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि यूएनओ जो है, ये एक आउटकम था किस चीज़ का, कि जो डिवास्टेटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका एक आउटकम था यूएनओ. ठीक है. नाउ फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ने ये विटनेस किया था कि ये जो वॉर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, लोगों की डेथ हो रही है, कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं. तो इन चीज़ को कहीं ना कहीं ये लोग ख़त्म करना चाहते थे. ओके, तो इन वॉर्स को हम बोलते थे वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II. ठीक है. तो वर्ल्ड वॉर I जो है वो बिगिन हुआ था 1914 में और 1919 में जाके ये एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. ठीक है. द मेन resource of these wars were the greed of the development and rich countries. The rich and development countries started making colonies in poor and undeveloped countries. The purpose behind this was to obtain raw materials from these countries and create a market of their products in these countries. These rich countries became jealous of one another because of growing wealth. They waged wars among themselves to make their empires and territories stronger and bigger. देखिए, जो रीजंस थे इन वॉर्स के वो ये थे कि कहीं ना कहीं ग्रीड आ गई थी डेवलपमेंट करने के लिए, रिच कंट्रीज बनाने के लिए लोगों में. ठीक है. तो वो ये चाह रहे थे कि जो अपनी कंट्री है उसको वेल्थ में हम लोग ऊपर लेके जा सके. रिच और पुअर जो है हमारे कंट्री में, जो पुअर है वो लोग ना रह सके, हम लोग रिच हो जाएं. ठीक है. तो जो पर्पस था इसके बिहाइंड वो ये था कि वो लोग रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करना चाहते थे और मार्केट्स बनाना चाहते थे जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में ग्रोथ कर सके. ठीक है. तो रिच कंट्रीज जो थी वो इस चीज़ से क्या हो रही थी, जेलस हो रही थी, एक दूसरे से जेलस हो रही थी कि एक दूसरे की वेल्थ को देखकर जेलस हो रही थी. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से. After the end of the World War I, the League of the Nations was set up in the 1920 to maintain peace among the countries and to avoid any war in the future. But it was a weak organization with no powers vested in it. देखिए, जब वर्ल्ड वॉर I का एंड हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशंस जो है वो सेटअप की गई थी 1920 में, ताकि जो लोग हैं, ये इसलिए किया गया था ताकि पीस को मेंटेन करके रखा जा सके. लेकिन ये एक फेलियर साबित हुआ था क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर II भी हो गया. ठीक है. नाउ 20 years later to the close of the World War I, the World War II broke out. It was more devastating and more horrible than the World War I. It broke out in the year 1939 and ended in 1945 when the USA dropped atom bombs on two Japanese cities, Nagasaki and Hiroshima. Approximately 1,50,000 people were killed. The whole world was stunned. देखिए, 20 साल के बाद, वर्ल्ड वॉर I के 20 साल के बाद वर्ल्ड वॉर II जो है उसने प्लेस लिया और ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था वर्ल्ड वॉर I से. ओके, इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई. तो यहाँ पर बताया गया है कि 1939 में ये हुआ और 1945 तक ये कंटिन्यू किया गया था. यूएसए ने एटम बम जो ड्रॉप किए थे जापानीज के दो सिटीज़ पर जिसका नाम है नागासाकी और हिरोशिमा, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 लोगों की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो स्टन्ड था. ओके. नाउ this mass destruction of life and property after the World War II compelled the world leaders to think seriously to adopt measures to check such was future. It was sure that if another war was fought, it would destroy the entire world. देखिए,
तो जो मास डिस्ट्रक्शन थी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, वर्ल्ड वॉर 2 की, उसने ये कंपेल किया था कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सीरियसली अगर इन सबको नहीं लेंगे तो आगे जाके और भी वॉर्स जो है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो एंटायर वर्ल्ड है वो ख़त्म हो सकता है, ओके, डिस्ट्रॉय हो सकता है. So, a stronger and powerful world organization was envisaged by many world leaders and this led to the formation of the Union Nation Organization. ठीक है, तो इसके बाद जो स्ट्रॉन्गर और पावरफुल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी वो लाई गई, जिसकी वजह से क्या आया, UNO, United Nation Organizations. Okay, on 24th October 1945, delegates from 50 countries met at San Francisco, USA to sign the UN Charter giving birth to the United Nation Organization. ठीक है, 24th of October को 1945 में जो 50 कंट्रीज से कोई ना कोई डेलीगेट्स आए थे, सैन फ्रांसिस्को में इसकी मीटिंग रखी गई थी और वहाँ पर UN चार्टर को जो है बर्थ दिया गया, जिसमें से UNO को लाया गया. ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स. The term UN was decided by the president of the US Franklin D. Roosevelt. देखिए, जो UN है वो डिसाइड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ USA के थ्रू. ओके, as the United Nations Organization was formed on October 24, 1945. This day was celebrated as the United Nations Day throughout the world. The headquarters of the UNO is at Manhattan in New York City of the USA. The membership of the UN is open to all peace-loving countries willing to accept the objectives and principles. देखिए, जो UNO है इसका बर्थ हुआ था 24th of October 1945 में और इसी डे को जो है 24th अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है. ओके, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में है और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो UN की में मेंबरशिप ले सकती हैं, बस इसके प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, द UN हैज़ इट्स ओन फ्लैग. It is blue with the UN emblem on it in white. The emblem consists of two olive branches embracing the globe. The olive branches symbolize peace. The charter of the UNO is its कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, UNO का खुद का फ्लैग है, फ्लैग जो है वो ब्लू कलर का है और उस पर वाइट कलर का एम्बलम बनाया गया है. ओके, और एम्बलम में दो ओलिव ब्रांचेस हैं जो कि ग्लोब को एम्ब्रेस करती हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UNO. फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. UNO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? To establish international peace and security, to preserve human rights and freedom, to establish friendly relations among all nations, to remove differences based on race, religion, language and sex among the people, to resolve economic, social, cultural and human problems peacefully in cooperation with every nation. They function as a central coordinating body for various nations in order to achieve these objectives. देखिए, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आपको पीस लानी है और सिक्योरिटी लानी है. ओके, लोगों की जो राइट्स हैं और जो फ्रीडम है उसको प्रिजर्व करके रखना है. ओके, फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, ठीक है, नेशंस के बीच में, और जितनी भी डिफरेंसेस हैं उन्हें रिमूव करना है, जैसे कि रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स. ओके, और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें पीसफुली सॉल्व करना है. ओके, नाउ to achieve the objective, the UN issued a Declaration of Rights for Human Beings. It is called the Declaration of Human Rights. It was adopted on 10th December 1948. So 10 दिसंबर is celebrated as the Human Rights Day every year. देखिए, अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए UN ने इशू किया डिक्लेरेशन कुछ राइट्स का, ह्यूमन राइट्स के लिए, तो इसे बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये 10 दिसंबर को हुआ था 1948 में, तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, Following are the some of the declarations of the human rights. All the people have the right to live as free citizens of a country. All people should be equal before law. All people have the rights to education. One should have the freedom of traveling in any part of the world. Every person should have the freedom of speech and writing. There should be equal pay for equal work. No discrimination based on religion, sex and race should be made. देखिए, अब इस डिक्लेरेशन में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि
सबको इक्वली ट्रीट करना है, ओके। सबको अगर काम सेम है तो उनको सैलरी भी सेम ही देनी है, ओके। राइट टू एजुकेशन है। उसके अलावा आप कहीं भी किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको रोका टोका नहीं जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। और आपको फ्रीडम है स्पीच की और राइटिंग की, ओके। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी चीज़ में, ओके। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish are the official languages of the UNO. UNO की जो official languages है वो है Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. Okay. Organs of the UNO. The UNO is an international organization formed by the nations of the world. It has representatives from all its member countries. The real power of the UNO lies with its members. To achieve its various objectives, the UN Charter has established 6 different working organs that serve different purposes. देखिए UNO जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशंस, जो वर्ल्ड के नेशंस हैं उनके थ्रू ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। नाउ ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेंबर्स हैं कंट्रीज़ के, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उसी के मेंबर्स हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो जो रियल पावर है यूएनओ की वो इसके मेंबर्स में ही है, मेंबर से ही है, ठीक है। अब इसके जो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स है वो जो यूएन चार्टर है उन्होंने एस्टेब्लिश की है 6 डिफरेंट वर्किंग ऑर्गन्स के थ्रू, ओके, और डिफरेंट पर्पसेस भी हैं उनके। फॉलोइंग आर द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं वो ये हैं: द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके। ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। द जनरल असेंबली, it is the largest body of the UNA. It consists of all the member states of the UNO. It is like a world parliament, ओके। देखिए ये लार्जेस्ट बॉडी है यूएनओ की, जिसे बोलते हैं हम जनरल असेंबली, ओके। इसमें सभी मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, सभी स्टेट्स के जो कि यूएनओ में आते हैं, ठीक है। ये एक वर्ल्ड पार्लियामेंट कहलाता है एक तरीके से, ओके। ईच मेंबर can send 5 representatives to the General Assembly, but each nation has only 1 vote. The UNO generally works on the decision of the General Assembly. It has its headquarters in New York. Okay, देखिए हर मेंबर जो है उसके 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। नाउ तो जब यूएनओ जो वर्क करता है जनरली वो डिसीजन लेता है जनरल असेंबली में ही, ओके। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। नॉर्मली द जनरल असेंबली मीट्स once every year in the 3rd week of the September to discuss important international problems and issues. It is also deliberates on problems like poverty, increasing population, social inequality, illiteracy, etc. and suggests way to solve them. Okay, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हर साल सितंबर में जो जनरल असेंबली है वो एक मीट रखती है हर साल, ओके। और उस मीटिंग में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की जाती है, ओके। जैसे कि पोवर्टी हो गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया, ओके। नाउ द जनरल असेंबली ऑल्सो अडॉप्ट द ईयरली बजट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द यूएनए, ओके। जनरल असेंबली जो है वो ईयरली बजट भी बना के रखती है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके यूएनओ की, ओके। The Security Council. The Security Council is responsible for maintaining peace and security in the world. It is the most powerful organ of the UNO. It has 15 members, of which 5 members are permanent members. The remaining 10 members are elected by the General Assembly for a term of 2 years. देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका क्या काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए पीस और सिक्योरिटी, ओके। अब इसमें मेनली क्या होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो 5 मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो बचे हुए 10 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा हर 2 साल के लिए, ओके। नाउ फॉलोइंग आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। ये जो 5 कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये 5 कंट्रीज जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। Each member of the council has 1 vote. To pass a resolution, all the permanent members must vote
in favor of the resolution. Each permanent member has veto power also. The veto power can be used to withdraw a resolution by the permanent member. The decision of the Security Council are binding on all the members nations. देखिए हर मेंबर जो काउंसिल का मेंबर है उसके पास एक वोट होता है, ठीक है। नाउ रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करते हैं। नाउ जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर यूज किया जाता है रेजोल्यूशन को विथड्रॉ कराने के लिए, ठीक है, ओके। जो डिसीजन है ये सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, ओके। The Secretariat. The Secretariat looks after the day-to-day activities of the UN. It also looks after the policies and programs laid down by the other organs of the UNO. The head of the Secretariat is called the Secretary General. He is elected by the General Assembly for a term of 5 years. Okay, देखिए जो सेक्रेटेरिएट होता है वो क्या चीज़ें देखता है? ही लुक्स आफ्टर द डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब कि यूएन की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसको ये देखते हैं, ओके। और ये असेंबली में 5 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ओके। एक्स्ट्रा शॉट्स, ट्राइग ली ऑफ नॉर्वे वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ। जो ट्राइग ली थे वो नॉर्वे से थे और वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के, ओके। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. The International Court of Justice is the official judicial organ of the UNO. It has its permanent headquarters at The Hague in Netherlands. The International Court of Justice has 15 judges who are elected by the UN General Assembly and the Security Council for a term of 9 years. Okay, यहाँ के जो कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस है वो 3 इयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ओके। और इन जजेस को हम री इलेक्ट भी कर सकते हैं अगर टर्म जो पीरियड खत्म हो चुका है उसके बाद, ओके। नाउ एक्स्ट्रा शॉट्स. डॉक्टर नागेंद्र सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे वो पहले इंडियन प्रेसिडेंट्स थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ओके। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. The Economic and Social Councils discuss economic and social problems and suggest ways to solve them. It looks after the issues such as human rights, health, women education, poverty, trade, etc. देखिए इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है ये डिस्कस करती है इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को, ओके, और उन्हें सॉल्व करने के लिए सजेशंस देती है, ठीक है। ये जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, हेल्थ है, विमेन एजुकेशन है, पॉवर्टी है, ट्रेड है, इन सब की जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करती है, ओके, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करती है। The Economic and Social Council has 54 members. These members are elected for a term of 3 years by the General Assembly, okay? तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में टोटल 54 मेंबर्स होते हैं और ये 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। The Trusteeship Council. The Trusteeship Council carries out the work of looking after those countries which are not independent. The council meets once every year. Okay, Trusteeship Council क्या होती है? ये उन countries के लिए है स्पेशली जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। और ये काउंसिल जो है इसमें मीट होती है हर साल, ठीक है। प्रेजेंटली दिस काउंसिल इज नॉट as active as it was earlier because no colonial country exists now, okay। तो ये काउंसिल प्रेजेंटली इतनी एक्टिव नहीं है जितनी ये पहले हुआ करती थी क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी कॉलोनियल कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। नाउ एजेंसीज ऑफ द यूएनओ. The United Nations Organization has some specialized agencies working in the field of labor, education, health, etc. Some of them are mentioned below. Okay, देखिए UNO की कुछ specialized agencies है जो कि काम करती है किस फील्ड में? लेबर में, एजुकेशन में और हेल्थ में। तो कुछ नीचे दी गई हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ बोलते हैं इसे, ओके।
It is a world organization that works for children. It was established in the year of 1946 with an aim to providing food and shelter to the children who were affected by the World War II. Its headquarters is in New York. In 1965, the UNICEF was awarded Nobel Prize. देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है और ये बनाई गई थी 1946 में और तब बनाई गई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद बनाई गई थी। तो इसका जो एम है वो ये है, जो चिल्ड्रन हैं उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना है। ओके, नाउ यूनिसेफ जो है उसको 1965 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, इन इंडिया द यूनिसेफ हैज टेकन मेनी प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। Anganwadi in India is such a program which is being carried out with the help of the UNICEF. The UNICEF mainly depends on volunteer contributions. It also raises funds by selling greeting cards and other fundraising activities. ओके देखिए अब यूनिसेफ ने इंडिया में भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चलाए हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी। ओके, आपने सुना होगा गांव में आंगनवाड़ी होती है। ओके, ये कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूनिसेफ के थ्रू ही चलाया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ओके, it was established in the year 1946. Its main objective is to educate people who cannot read and write. It provides consultancy to underdeveloped countries in science and technology. UNESCO also helps in preserving old monuments. It also gives specialized training in preserving ancient art, culture and architecture. The headquarters of UNESCO is in Paris, France. Okay. यूनेस्को जो है वो 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो मोटिव था वो ये था कि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को एजुकेट किया जाए। ओके, और इनकी कंसल्टेंसी जो थी, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, उनको एज अ कंसल्ट लेके चलते थे ये। उसके अलावा यूनेस्को प्रिजर्व करता है ओल्ड मोन्यूमेंट्स को, ओके, एंशंट आर्ट को, कल्चर को, आर्किटेक्चर को। ओके, तो यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है पेरिस, फ्रांस में। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ द लेबरर्स. It tries to promote better standards of working conditions to the workforce. देखिए जो ILO है वो वर्क करता है लेबरर्स के राइट के लिए। ओके, लेबरर्स मतलब जो लोग काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। ओके, तो उनके राइट के लिए काम करता है और ये प्रमोट करता है उनके बेटर स्टैंडर्ड्स के लिए। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO was set up in the year 1948. It works in the direction of improving health of the people. It also provides its services in controlling epidemics and diseases. देखिए WHO जो है वो 1948 में सेटअप किया गया था और ये हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे हम एपिडेमिक्स और डिजीजेस से बच सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। It works with the government of the country and provides shelter, safe drinking water, adequate sewage disposal and immunization against childhood diseases. Its headquarters is at जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। देखिए ये काम करता है एक कंट्री के लिए और उसे प्रोवाइड करता है शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट सीवेज डिस्पोजल। तो ये सारी चीज़ें के सैनिटी होनी चाहिए, तभी आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर हो सकती है। ओके, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, it was established to provide food to the people who die from hunger. It works for the improvement of food technology with an aim to producing better and adequate distribution of grains. Its Latin motto flat pennies means लेट देयर बी ब्रेड। ओके, देखिए ये एस्टैब्लिश किया गया था उन लोगों के लिए जो कि मर गए थे हंगर से, भूख से, जिनकी डेथ हो गई थी। ओके, नाउ इसका काम जो है वो है लिटरली के फूड टेक्नोलॉजी
उसको प्रोवाइड करना है लोगों तक, उसको उसकी इम्प्रूवमेंट लानी है, ओके, और जहाँ पे नहीं है चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी है प्रॉपर ग्रेन्स, ओके। तो इनका जो लैटिन मोटो है वो है फ्लैट पेनिस, जिसका मतलब है लेट देयर बी ब्रेड, ओके। अचीवमेंट्स ऑफ द UNO. The United Nations organization has done a tremendous job in maintaining international peace around the world. It has sorted out many crucial problems efficiently and has avoided panic of war. देखिए UNO ने बहुत ही अच्छी जॉब की है जिसके थ्रू उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पीस क्रिएट की है, ओके, वर्ल्ड के अराउंड। नाउ it has taken measures to boost disarmament to avoid fury of war. It has done a great job in the area of improving food production and providing better working conditions for industrial workers. It has also helped the development countries in fighting against poverty, diseases and illiteracy. At the time of natural disaster, it lends its services to the affected countries. It has played a pivotal role in establishing cultural cooperation among countries. देखिए इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि वर्ल्ड वॉर जो हो रहे थे बेसिकली उन चीज़ों को रोका जा सके और हर एक कंट्री में पीस लाई जा सके, ठीक है, तो दोबारा से हमें वर्ल्ड वॉर देखने को ना मिले। तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था और जिसके थ्रू इन्होंने सक्सेस भी पाई और हर जगह ये पीस लेके आ सके। उसके अलावा जो जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ला के दी, और उसके अलावा फूड जो प्रॉपर जगह नहीं है वहाँ पर फूड पहुँचाया गया, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड जो इन्होंने की और उसमें सक्सेस भी पाई, ओके। नाउ इंडिया एंड द UNO. India is one of the founder members of the UNO. It signed the UN Charter in 1945. Although India was not an independent country at the time, yet the British government authorized India to join the UNO. देखिए जो इंडिया है उन्होंने UN चार्टर को साइन किया था 1945 में। तो इंडिया उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलाउ किया था इंडिया को UNO ज्वाइन करने के लिए, ओके। Extra short. Vijaya Lakshmi Pandit of India was the first women president of the UN General Assembly in 1953. Okay, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो पहली UN General Assembly की women president थी, okay, तो वो बनी थी 1953 में, okay. India was also elected as a member of the Security Council. It has participated actively in many of the programs conducted by the agencies like UNESCO, UNICEF, WHO, FAO and ILO. It has sent its peacekeeping force whenever required for the mission by the vehemently. It was a policy practiced by the white government of South Africa against the non-whites. It was also known as apartheid. India favors the use of nuclear power only for the peaceful purposes. देखिए इंडिया इलेक्ट की गई थी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बनने के लिए, ओके। तो उसने पार्टिसिपेट किया था काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में और एजेंसीज में जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO या फिर ILO, ओके। तो पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो लाई गई थी, ये एक मिशन था UNO का कि पीस कीपिंग फोर्स हम रखें जिसके थ्रू जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड हैं उनमें पीस रह सके, ओके। तो ये अपोज करती थी उस पॉलिसी को जो ये कहती है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ओके। तो जैसे कि वाइट गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका की वो अगेंस्ट थी नॉन वाइट्स की, समझ रहे हो, जैसे हमने पढ़ा था ये पहले भी इसके पहले चैप्टर्स में हमने चीज़ पढ़ी है कि जो वाइट्स थे वो जो ब्लैक से उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ओके। तो इसके अगेंस्ट थी UNO, ओके। Now, India has proposed a total ban on nuclear weapons at the UN General Assembly session conducted to discuss the issue of disarmament in July 1982. Okay, देखिए
इंडिया ने प्रपोज किया था कि टोटल बैन कराना चाहते हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स पे, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली के सेशन, तो उसके थ्रू क्या किया था उन्होंने, ये चाहा था कि इन सारी चीज़ों को बैन करा सकें, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बैन करा सके, इसीलिए एक सेशन कंडक्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के थ्रू, ओके, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी जुलाई 1982 में, ओके। नाउ ओरल स्किल्स, when was the United Nations organization formed? Where is the headquarters of the International Court of Justice? ये आप खुद से करेंगे। Keywords: West, to give something as a firm and legal right. Envisage, a form, a mental pictures of something. Deliberate, to think carefully. Resolution, a decision. Voluntary, willingly. Let's recapitulate. On 24th October 1945 at San Francisco, USA, the United Nations Organization was formed. The headquarters of the UNO is in Manhattan in New York City of USA. There are 6 main organs of the United Nations Organization. There are 5 permanent members in the Security Council. The United Nations Organization has some specialized agencies also. The UNO has done a tremendous job in maintaining international peace around the world. India is one of the founder members of the UNO. India has participated actively in many of the UNO's programs conducted by its agencies. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।